Bismillahirrahmanirrahim. I am here with the subject of science class 5. This is lecture number 12, unit number 4. Today we will discuss invertebrates in detail. There are more invertebrates than vertebrates on the earth. We previously have discussed the definition and this thing of invertebrates, that on earth the number of invertebrates are more than vertebrates. Invertebrates are those animals which do not have a backbone. Invertebrates are divided according to the structural features of their body. The different examples of invertebrates are shown in the picture. For example, spider, slug, centipede, ant, snail, ladybird. They are all invertebrates. Some invertebrates have 3 or more pair of legs, and their examples are insects, spider, crab. There are also some other invertebrates which do not have any legs, and like worms, mollusks, slug. Some invertebrates have antennae as in insects or tentacles as in anemone, while others do not have as in starfish. Antennae are actually the long thin sensory organs which are there on the head of some insects. Some invertebrates have soft bodies like jellyfish, while the others have a hard shell as in snail or exoskeleton as in ladybird to protect their soft bodies. Exoskeleton is actually a rigid outer covering of the body which protect the soft inner parts of the invertebrates. Now we will discuss about the worms. There are many different worms. Worms have long tube-like body and no arms or legs. लंबी ट्यूब की तरह की इनकी बॉडी होती है और इनमें आर्म्स और लेग्स नहीं होती. Some worms are microscopically small while the others can grow much longer. इनका साइज़ वेरी करते हैं. कुछ छोटे हैं, बहुत छोटे कि उनको सिर्फ दे कैन ओनली बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप, जबकि कुछ ऐसी हैं जिनकी बॉडी काफ़ी लॉन्ग है. सम कैन कॉज इन्फेक्शंस, कुछ इन्फेक्शियस भी हैं. सम आर पैरासाइट एंड लिव इन बॉडीज़ ऑफ अदर एनिमल्स. पैरासाइट्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते और वो किसी और लिविंग थिंग में रहते हैं और वहाँ से अपनी फूड हासिल करते हैं. तो वॉर्म्स कुछ इन्फेक्शंस भी कॉज करते हैं और कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं जो पैरासाइट्स हैं. We can see in the picture that earthworm is also an example of the worms, and they have long bodies. Worms live in various habitat. Where the habitat, as we have discussed in previous lectures, that habitat is a place where an animal makes its home. कि worms रहते कहाँ हैं. Some worms live in water, यानी moist places जो होती हैं, sea, fresh water, land और burrow underground. ज़मीन के अंदर जाके घुस के burrow करके ज़मीन के अंदर भी कुछ worms रहते हैं. Such as earthworm are useful. They live in soil and help to enrich it. They also aerate, bring air into the soil. अब हम इस चीज़ को समझते हैं और इसको डिस्कस करते हैं. earthworms burrow करते हैं सॉइल को, उससे सॉइल की क्वालिटी इम्प्रूव होती है और सॉइल स्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है, सर्कुलेशन होती है और वो सॉइल इनरिच, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर ईट भी करते हैं जिससे सॉइल की क्वालिटी और उसका स्ट्रक्चर बहुत इम्प्रूव होता है.
जिस सॉइल में अर्थवॉर्म्स रहती हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंसेक्ट्स। अभी हमने पहले वॉर्म्स को डिटेल में पढ़ा, समझा उनकी बॉडीज़ के बारे में, और अब हम इंसेक्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। इंसेक्ट्स गेट देयर नेम बिकॉज देयर बॉडीज़ आर इन सेक्शंस, मतलब मुख्तलिफ सेक्शंस में उनकी बॉडी डिवाइडेड होती है, इसलिए इनका नाम इंसेक्ट्स रखा गया है। एन एडल्ट इंसेक्ट्स हैव 3 पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़। एक जो फुल ग्रोन इंसेक्ट होता है उसकी बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं। उन तीनों पार्ट्स के अब मैं आपको नाम बताऊंगी, आपने उन पार्ट्स के नाम याद करने होंगे स्पेलिंग्स के साथ। दीज आर अ हेड, अ थोरेक्स एंड एन एब्डोमेन। कि उनकी जो 3 पार्ट्स हैं बॉडी के इंसेक्ट्स के, उनका नाम है हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। इंसेक्ट्स के बारे में बाकी डिटेल अब हम पढ़ रहे हैं। इंसेक्ट्स हैव 2 फीलर्स और एंटीनी। दीज आर यूज्ड फॉर स्मेलिंग एंड फीलिंग। जैसा कि उसके नाम से ही पता चला कि एंटीनी को फीलर्स कहते हैं। पहले मैंने आपको अभी बताया है कि दे आर द लॉन्ग थिन सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स मीन्स कि सेंसेस के लिए यूज़ होते हैं, चीज़ों को स्मेल करने के लिए, फील करने के लिए। कोई आगे अगर उनके रास्ते में हर्डल है तो एंटीनी उनको वार्न करती है, जिसकी वजह से वो अपना रास्ता चेंज कर लेती हैं, चीज़ों को स्मेल करके अपना खाना तलाश कर सकती हैं इन एंटीनी और फीलर्स की मदद से। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन इंसेक्ट। In the picture we can see that a pair of antennae are attached on the head, and the 3 parts of the body of an insect can be shown in the picture. That is head, middle portion is thorax, and then abdomen. And there are also 3 pair of legs. As we have discussed earlier, there's most of the insects they have 3 pair of लेग्स, और जो एंटीनी इनके फीलर्स हैं वो इनके हेड के ऊपर अटैच्ड हैं। These are the pictures of some other insects. You can see the feelers, you can see the 3 parts of the body, head, thorax, abdomen, and you can also see antennae and the 3 pairs of legs. मोस्ट इंसेक्ट्स हैव 2 लार्ज आइज़, और अक्सर अगर किसी इंसेक्ट को बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व करें तो उनकी बल्जिंग आइज़ नज़र आ रही होती हैं। अ पेयर ऑफ लार्ज आइज़ हैं। ऑल इंसेक्ट्स हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स जॉइंड टू देयर थोरेक्स। अभी हमने उसकी पिक्चर में भी देखा कि एंटीनी हेड पे अटैच्ड हैं, जबकि 3 पेयर्स ऑफ लेग्स थोरेक्स यानी मिडल पोर्शन ऑफ बॉडी के साथ अटैच्ड हैं। इंसेक्ट्स की एग्जांपल्स हैं बीज, फ्लाइज एंड बीटल्स। दे आर ऑल इंसेक्ट्स एंड दे हैव विंग्स अटैच्ड टू थोरेक्स एंड कैन फ्लाई। बर्ड्स एंड बैट्स फ्लाई टू, बट दे आर नॉट इंसेक्ट्स। क्योंकि बर्ड्स के ऊपर फेदर्स हैं और ये और इंसेक्ट्स इनके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सिर्फ किसी भी चीज़ के फ्लाई करने से हम ये नहीं कह सकते कि वो इंसेक्ट है या वो बर्ड या बैट्स हैं। बर्ड्स और बैट्स भी फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो इंसेक्ट्स नहीं हैं। इंसेक्ट डू नॉट हैव बैकबोन्स, इंस्टेड दे आर स्पोटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड कवरिंग कॉल्ड काइटिन। इनकी बैकबोन नहीं होती क्योंकि ये इन्वर्टिब्रेट्स हैं, और इनकी बॉडी को प्रोटेक्शन के लिए एक हार्ड कवरिंग होती है जो कि इनकी अंदर की सॉफ्ट बॉडी को बचाती है, और उस हार्ड कवरिंग का नाम है काइटिन। एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्ट्स हनी बी, हाउस फ्लाई, बीटल। और इसके अंदर तमाम आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंसेक्ट्स नज़र आएंगी। हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन अलग अलग नज़र आ रहे हैं। अगर आप हनी बी को देखें और उसके हेड पे
उसके फीलर्स यानी एंटनी अटैच्ड हैं, उसकी थोरेक्स पे पेयर ऑफ विंग्स हैं और 3 पेयर्स ऑफ लेग्स भी अटैच्ड हैं और पीछे उनका एब्डोमेन नज़र आ रहे हैं। फ्रेंड और एनिमी, इंसेक्ट्स को ये भी हम डिटेल में सारा समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सम इंसेक्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी पेस्ट्स। अब पेस्ट्स वो इंसेक्ट्स हैं जो विच कैन कॉज हार्म और विच कैन डिस्ट्रॉय द प्लांट्स, और उनको वो हार्मफुल होते हैं प्लांट्स के लिए, उनको पेस्ट्स कहते हैं। वो फ़ायदा मंद नहीं होते। दे आर द एनिमी ऑफ प्लांट्स। दे डिस्ट्रॉय लीव्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। Some insects cause diseases, for example flies and mosquitoes। और कॉमन डिजीज़ जो इनसे फ्लाइज़ की वजह से डायरिया वगैरह के वो पास जब करती हैं, कोई जर्म्स वगैरह स्प्रे कर देती हैं आपके खाने पे, तो वो खाने से हमें कोई इन्फेक्शंस हो जाती हैं। इस तरह मस्कीटोज़ की बाइट से, जिस तरह डेंगू फीवर और मलेरिया इन्हीं से होते हैं। तो इसलिए बहुत से इंसेक्ट्स हैं जो कि डिजीज़ भी कॉज करते हैं एंड दे आर नॉट अवर friends। Some insects like honeybee, bee and silkworm are useful to us। अब हमारे जो insects जो हमारे friends हैं उनके नाम हैं हनी बी, दे मेक हनी फॉर अस, bees and silkworm, इनसे हमें बहुत फ़ायदा हासिल होता है और they weave the silk and all। You can see in the picture honeybee and silkworms and they are the फ्रेंड इंसेक्ट्स। और ऊपर हमने पढ़ा जिस तरह फ्लाइज़ हैं, मस्कीटोज़ हैं या कुछ पेस्ट्स हैं, दे आर अवर एनिमीज़। सम इंसेक्ट्स आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स एंड दे लिव टुगेदर इन ग्रुप्स कॉल्ड कॉलोनीज़। कुछ इंसेक्ट्स अकेले या अलग नहीं रहते, वो कॉलोनीज़ या एक ग्रुप बना के रहते हैं। और उनके एग्ज़ाम्पल हैं बीज़, एंट्स, टर्माइट्स। ये तमाम वो इंसेक्ट्स हैं जो कॉलोनीज़ बना के ग्रुप्स की शक्ल में रहते हैं। इन अ कॉलोनी देयर कैन बी 100 और इवन थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट्स। मतलब इतनी बड़ी तादाद में इंसेक्ट्स इकट्ठे रहते हैं और वो जो उनका पूरा ग्रुप होता है उसको कॉलोनी कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी मूव टूवर्ड्स द एक्सरसाइज। You have to read page number 37 and 38 and get ready with your books page number 39 and do the objective type on this page. If you have any questions, you can comment and you can ask the questions in the comment section. Thank you very much.